So I welcome back all the students for the second lecture of standard 10th second chapter, that is historiography development in India और इंडियन ट्रेडिशंस। तो हमने पहले पार्ट में बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया, जैसे कि इंडिया में हिस्टोरियोग्राफी कैसे चालू हुई थी। हमने 3 डिफरेंट पीरियड्स में इसके बारे में स्टडी किया। वी हैव स्टडीड द एंशिएंट पीरियड, द मिडिवल पीरियड एंड द मॉडर्न पीरियड। वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट वेरियस historians who did remarkable work in the field of historiography. They came up with new ideas. The similar ideas that we have already seen in the first chapter, or we can say the similar ideas that we have already discussed with the Western civilization. तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन और इंडियन सिविलाइजेशन में ऑलमोस्ट सेम टाइप के हिस्टोरिकल रिसर्च को यूज़ किया गया। Later on we discussed about some important historical documents such as the Bakhars, the autobiographies. Now in this particular lecture we shall be discussing about the Indian historiography various ideological frameworks. So here it is in this particular point we shall be discussing about various historians, what they thought, and the various subtypes or subtopics of historiography. So the first is the colonial historiography. So here first we have to understand the meaning of the word ideological. Ideological here, ideologies means ideas or principles. So what governs the Indian historiography? What are the ideas which make the Indian historiography different from the other historian studies? So first is the colonial historiography. So the early scholars who studied and wrote Indian history were mainly British officers and Christian missionaries. Their prejudice is clearly reflected in the way some of them have ridiculed Indian culture. Their writings were used to justify the colonial British rule. The 5 volumes of Cambridge History of India published during 1922 to 1937 CE are distinct examples of colonial historiography. तो जैसे कि हमने इसके पहले की जो वीडियो में बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया कि एक ब्रिटिश ऑफिसर इंडियन हिस्ट्री के बारे में कैसे लिख सकता है, और वो आगे लिख भी रहा है तो वो कैसे लिखेगा। There will be a prejudice in his mind. So here prejudice means what? The British and the Christian missionaries mocked Indian culture. Mocked Indian culture मतलब उन्होंने मजाक बनाया इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशंस के ऊपर उन्होंने एक मजाक बनाया कि आज भी इंडिया के लोग ऐसे ऐसे हैं, वो मंदिरों में जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, वो भगवान में विश्वास करते हैं, जबकि पूरी दुनिया, अगर आप पूरी दुनिया के बारे में बात करेंगे तो वर्ल्ड वॉज इंटरेस्टेड इन साइंटिफिक थिंग्स. The world was interested in science. There were different types of inventions. So there was no need to be believing in God, or there was no need, according to the Britishers, to believe in something divine. तो लेकिन इंडिया के कल्चर में अगर बात करेंगे तो इंडियंस इन चीज़ों को मान रहे थे. तो somewhere while writing about the Indian history, they made fun of the Indian culture. Their writings were used to justify the colonial British rule. उनकी जितनी भी राइटिंग्स थी, उन्होंने जितनी भी हिस्टोरियन बुक्स लिखी थी, हिस्टोरियोग्राफी से रिलेटेड बुक्स लिखी थी, उन सारों में उन्होंने लिखा कि जब कॉलोनीज मतलब ब्रिटिश जब हमारे ऊपर राज कर रहे थे, उन्होंने अपनी कॉलोनीज यहाँ पे बनाई, वो यहाँ पे रह गए, तो उन्होंने सिर्फ इंडिया का उद्धार किया. उन्होंने ये नहीं बताया कि कैसे वो इंडियंस को परेशान करते थे, हाउ दे टॉर्चर्ड अस. दे डिडंट टेल अबाउट दैट. But they were trying to explain to the world that how British rule was good for India. तो इसके जो 5 वॉल्यूम्स है कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये कुछ अलग नहीं है, उनमें से कुछ डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग है थोड़े से, पर ज़्यादा नहीं. So the next is Orientalist historiography. Many European scholars felt curious about civilization and countries of the East. Some of these scholars felt admiration and respect for them. These scholars were known as Orientalist. तो ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियंस कौन थे? ये कुछ ऐसे यूरोपियन स्कॉलर्स थे जो दुनिया भर के सिविलाइजेशंस और कंट्रीज़ में ट्रैवल कर चुके थे, और उन्हें उनके कल्चर के बारे में एक अच्छी बात थी, उनके मन में एक एडमिरेशन था, वो एडमायर करते थे, वो रिस्पेक्ट करते थे, वो और जानने की कोशिश करते थे. ऐसे स्कॉलर्स को हम लोग ओरिएंटलिस्ट कहते हैं. द ओरिएंटलिस्ट स्टडीड द सिमिलैरिटीज बिटवीन संस्कृत एंड सम ऑफ द यूरोपियन लैंग्वेजेस. जैसे कि हम कहते हैं कि संस्कृत लैंग्वेज इज इन्फ्लुएंस्ड और हैज़ इन्फ्लुएंस्ड मैनी अदर लैंग्वेजेस टू डेवलप. They focused more on the Vedic
ट्रेडिशन एंड संस्कृत लिटरेचर। तो हमारी जो संस्कृत लैंग्वेज थी वो वैदिक ट्रेडिशन और संस्कृत लिटरेचर में ज़्यादा पाई जाती थी। जैसे कि हमने पहले ही पार्ट में ये बात बता चुके हैं हम लोग कि इंडियंस हैड मास्टर्ड द आर्ट ऑफ राइटिंग। इसका मतलब हमारे पास पहली रिटन स्क्रिप्ट थी किसी भी लैंग्वेज की। The studies resulted into formulating the notion of an ancient language that could be mother of all Indo-European languages। तो वो उन्होंने एक थीसिस लिखा, फिर उसके ऊपर एंटीथीसिस हुआ और एक सिंथेसिस, एक फाइनल फॉर्म में वो ऐसा आए, एक फाइनल रिजल्ट ऐसा आया कि शायद इंडिया में एक ऐसी लैंग्वेज थी, एक ऐसी एंशंट लैंग्वेज थी जो शायद सारी लैंग्वेजेस की ओरिजिन का रूट हो सकता है। इट कुड बी मदर ऑफ ऑल द इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। मतलब इंडिया और यूरोप में जितनी भी लैंग्वेजेस बोली जाती है ये सारी लैंग्वेजेस इस पर्टिकुलर लैंग्वेज से ही इंस्पायर्ड है। इन 1784 सर विलियम जोन्स फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी इन कोलकाता। इट ओपन्ड द डोर्स फॉर रिसर्च इन एंशंट इंडियन लिटरेचर एंड हिस्ट्री। तो 1784 में सर विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स, अभी सर विलियम जोन्स कौन है? Was an Anglo-Welsh philologist. A philologist is a person who studies the origin and history of languages. In the first chapter we have studied about linguistics, which is the study of languages. तो philologist उसका एक सब टाइप है। एक प्रेसिडेंट जज एज सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट फोर्ट विलियम इन बंगाल। तो एक सुप्रीम कोर्ट के एक जज, एक जाने माने जज सर विलियम जोन्स ने कोलकाता में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। इट ओपन द डोर्स फॉर रिसर्च इन एंशंट इंडियन लिटरेचर एंड हिस्ट्री। तो जब इस सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी, इंडिया की एक बहुत ही पुरानी सोसाइटी है, एक रिमार्केबल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो इंडियन लिटरेचर और लैंग्वेजेस को स्टडी करता है। अमंग द ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स फ्रेडरिक्स मैक्स म्यूलर डिजर्व्स अ स्पेशल। इन हिज ओपिनियन संस्कृत वॉज द मोस्ट एंशंट लैंग्वेजेस ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। सो फ्रेडरिक्स मैक्स म्यूलर जो थे, जो हिस्टोरियन थे, उन्हें लगता था कि संस्कृत जो ये लैंग्वेज है ये सबसे पुरानी लैंग्वेज है। ही वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन संस्कृत लिटरेचर। ही फर्स्ट ट्रांसलेटेड द संस्कृत टेक्स्ट ऑफ हितोपदेश। ही वॉज द एडिटर ऑफ 50 वॉल्यूम्स ऑफ द सैक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट। ही ऑल्सो कंपाइल्ड ऋग्वेदा विच हैज़ बीन पब्लिश्ड इन 6 वॉल्यूम्स। तो हम फ्रेडरिच मैक्स म्यूलर के बारे में जब बात करते हैं तो हमें ये भी समझ में आता है कि वो संस्कृत लिटरेचर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो चुके थे। तो उन्होंने अपना बहुत सारा काम संस्कृत लिटरेचर के ट्रांसलेशन में किया। तो उन्होंने अपने जीवन काल में संस्कृत टेक्स्ट, हितोपदेश नाम का एक संस्कृत वॉल्यूम है, उससे उन्होंने ट्रांसलेट किया था। वो एक एडिटर थे, तो उन्होंने 50 से ऊपर वॉल्यूम मतलब एक कलेक्शन ऑफ बुक्स होता है। द सैक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट मतलब इंडिया के हो सकते हैं या फिर और किसी दूसरे देश के जो सैक्रेड बुक्स थे, जो रिलीजियस बुक्स थे, उन बुक्स का स्टडी किया। उन्होंने ऋग्वेदा के ऊपर भी बहुत सारी किताबें लिखी। ऋग्वेदा को भी ट्रांसलेट किया जर्मन में। ही ऑल्सो कंपाइल्ड ऋग्वेदा विच हैज़ बीन पब्लिश्ड इन 6 वॉल्यूम्स। ही ट्रांसलेटेड ऋग्वेदा इन जर्मन। लेटली एडवर्ड्स सेड, a scholar who has re-evaluated the Orientalist writings has thrown light on imperialistic interest of Orientalist scholars। तो इम्पेरियलिज्म के बारे में हम जब बात करते हैं तो कैसे एक बड़ी कंट्री एक छोटी कंट्री को या फिर एक लिस्ट पावरफुल कंट्री को किस तरह से रूल करती थी, किस तरह से वो तंग करते थे, या फिर हम कहेंगे कि दे यूज्ड टू ट्रबल, हैरेस, या फिर हम कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जब करती थी तो ये सारी चीज़ें भी ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती थी। इंटरेस्टिंग मतलब उन्होंने क्या किया, उस हिस्ट्री के बारे में किसी ने लिखा कि नहीं, इन चीज़ों के बारे में भी उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया। तो नेक्स्ट पॉइंट है नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी। द वर्ड इटसेल्फ shows that it is something to do with the nation. The writings of the Indian historians who were trained in the British educational system show an inclination to restore the pride in the ancient glory of India and self-esteem of the Indian readers। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी जब इंडियन स्कॉलर्स थे, जब उन्होंने ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को फॉलो किया, उनसे उन्होंने एजुकेशन लिया, इंग्लिश इस लैंग्वेज को लर्न किया, तो उन्हें समझ में आया कि अभी हमें कुछ ऐसी चीज़ करनी पड़ेगी जिससे इंडिया का रिस्पेक्ट दुनिया में बढ़े। इंडिया की जो भी ग्लोरी है, जो भी प्राइड है, उसे हमें वापस रिस्टोर करना है। कि इससे पहले जो हिस्टोरियंस हुआ करते थे, जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, उन्होंने इंडिया के बारे में बहुत सारी अफवाहें, गलत चीज़ें दुनिया में फैला रखी थी। तो हमें कुछ ऐसा चाहिए था,
हमें कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसा रिसर्च करना पड़ेगा जिससे हम दुनिया को ये बता सके कि इंडिया का कल्चर कितना रिच है. देयर राइटिंग्स आर नोन एज नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी. Nationalistic writings in Maharashtra were inspired by Vishnu Shastri Chiplunkar. He criticized the prejudiced history of ancient India written by the British officers. तो नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस में अगर हम किसी की बात करेंगे तो महाराष्ट्र से विष्णु शास्त्री चिपळूणकर, ये इनका एक नाम बहुत बड़ा है. उन्होंने हमेशा से ही ब्रिटिश ऑफिसर्स, महाराष्ट्रियन जितने भी हिस्टोरियंस थे उन्हें लगता था कि कहीं ना कहीं पे ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इंडिया के साथ एक नाइंसाफ़ी की है. उन्होंने अपनी हिस्ट्री, हमारी हिस्ट्री लिखने में कहीं ना कहीं पे हेर फेर करके हमारी हिस्ट्री दुनिया के सामने लाई है. द नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस ट्राइड टू सीक द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री. दे आर एट टाइम्स ब्लेम्ड फॉर इग्नोरिंग द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल ट्रूथ. तो नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस को लगता था कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश ऑफिसर्स या फिर जितने भी ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे जिन्होंने हमारी संस्कृति के बारे में लिखा, हमारी हिस्ट्री के बारे में लिखा, उन्होंने क्रिटिकल एनालिसिस नहीं किया था. इन्होंने कुछ बहुत सारी गंभीर चीज़ों को उसमें से निकाल दिया था. तो कहीं ना कहीं उन्हें हिस्टोरिकल ट्रुथ की तलाश करनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं किया. महादेव गोविंद रानडे, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, विनायक दामोदर सावरकर, राजेंद्र लाल मिश्रा, रमेश चंद्र मुजुमदार, काशी प्रसाद जसवाल, राधा गोविंद मुखर्जी, भगवान लाल इंद्रजी, वासुदेव विष्णु मेराशी, and Anand Sadashiv Altekar are the names of some renowned scholars among the nationalistic historians. So here are some information about Do You Know? I hope the students will read it on their own from their respective textbooks. Moving on to the next one is Rajwade is a well-known, that is V.K. Rajwade is a well-known for his writings in Marathi on varied subjects like history, that is study of history and historical objects, linguistics, study of language, etymology. तो etymology is the origin or the history of the words. Grammar, जैसे आप सबको पता है ग्रामर क्या होता है, the structure of language, formation of language. He was one of the firm opinion that we should write our own history. उन्हें लगता था कि इंडियंस ने अपनी हिस्ट्री खुद लिखनी चाहिए, इंडियंस ने इंडिया की हिस्ट्री को स्टडी करना चाहिए, हिस्टोरियंस को अच्छा रिसर्च, क्रिटिकल एनालिसिस करना चाहिए और उसके बाद ही इंडियंस को उससे लिखना चाहिए. ही कंपाइल्ड एंड एडिटेड 22 वॉल्यूम्स ऑफ मराठ्यांचे इतिहासाची साधने. ही रोट वेरी स्कॉलरली प्रीफेसेस टू ईच ऑफ द 22 वॉल्यूम्स. अगर आपको पता नहीं कि प्रीफेस क्या होता है तो पहले समझ लीजिए कि प्रीफेस का मतलब क्या है. तो प्रीफेस एक्चुअली आप जो भी बुक हो उसके आगे अगर आपको प्रीफेस मिलेगा तो प्रीफेस का मतलब है कि उस पर्टिकुलर बुक में क्या है, उसमें एक डिटेल एक्सप्लेनेशन, एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन होता है इन डिटेल थोड़ा सा कि अंदर आपको बुक में क्या देखने को मिलेगा, आपको क्या स्टडी करने को मिलेगा. तो वी.के. राजवाड़े जी ने अपनी जितनी भी 22 वॉल्यूम्स थी, 22 वॉल्यूम्स लिखना मतलब छोटी चीज़ नहीं है. उनका स्टडी कितना होगा, इनका रिसर्च कितना होगा, कितना क्रिटिकल एनालिसिस उन्हें करना पड़ेगा. और फाइनली जब वो सारी चीज़ें बुक्स उन्हें लिखी, 22 वॉल्यूम्स जब पब्लिश की, उन्होंने हर एक वॉल्यूम के आगे, हर एक बुक के आगे एक प्रीफेस लिखा जिससे रीडर्स को ये समझ में आएगा कि अंदर उन्हें बुक में क्या देखने को मिलेगा. ही स्टेटेड हिस्ट्री इज द ऑल इंक्लूसिव इमेज ऑफ द पास्ट सोसाइटीज. It does not include only the stories of political images, conspiracies and wars for seizing power. तो उनके हिसाब से हिस्ट्री जो होता है वो ऑल इंक्लूसिव इमेज होना चाहिए पास्ट सोसाइटीज़ का. ऑल इंक्लूसिव का मतलब है सिर्फ थोड़ी सी चीज़ों या फिर गिनी चुनी चीज़ों के बारे में लिखने से अच्छा है कि आप सारी चीज़ें उनमें इंक्लूड करें, क्योंकि आप जब हिस्ट्री स्टडी करते हो तो वो सारी चीज़ें आप स्टडी करते हो. आप जब हिस्टोरिकल किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को, इंस्ट्रूमेंट को स्टडी करते हो तो ये नहीं सोचते हो कि ये सिर्फ शायद किसी किंग या किंगडम की चीज़ होगी. तो उसके पीछे उसकी बनाने की वजह क्या हो रही होगी, व्हाट वुड बी द यूज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, किन लोगों ने इसे यूज़ किया होगा, तो इसमें कोई अडेप्टेशंस हुए कि नहीं, उसे अपडेट किया गया है कि नहीं, ये सारी चीज़ें भी हिस्ट्री में स्टडी करनी चाहिए. He insisted that history should be written by only using the authentic documentary source. जैसे कि वेस्ट में जितने भी हिस्टोरियंस थे वो कहते थे कि ऑथेंटिक सोर्स मतलब अगर वो सोर्स सही है,
सोर्स अगर सही होगा तो ही आप हिस्ट्री सही लिख पाएंगे। अगर सोर्स ऑथेंटिक नहीं है, मतलब ओरिजिनल नहीं है, फेक है, तो आप उसे एक डॉक्यूमेंट्री सोर्स की तरह यूज़ नहीं कर सकते। मतलब उससे जो भी हिस्ट्री मिलेगी वो शायद गलत भी हो सकती है, इसलिए आपको उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करनी चाहिए। द नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी हेल्प्ड इन ट्रिगरिंग ऑफ द इंडिपेंडेंस movement of the Indian people against the British. In the aspect of the book, The Indian War of Independence 1857, written by Vinayak Damodar Savarkar, is one of the greatest importance. तो जब हमने नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस ने नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी के बारे में लिखना चालू किया, वो एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट को बूस्ट मिला, क्योंकि लोगों में, इंडियन लोगों में अपनी जो कल्चर है, अपने जो ट्रेडिशंस है, अपनी इंडिया के बारे में एक नेशनलिस्टिक फीलिंग है, इंपॉर्टेंस आया कि हाँ हमारा नेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज यू कैन लुक अबव, देयर इज सम इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय वी के राजवाड़े। ह्यूमन हिस्ट्री इज डिफाइंड बाय टाइम एंड स्पेस, डिस्क्राइबिंग एन इवेंट necessities that the final portrayal should be spread on the complete canvas of the given time and place. Only if a balanced combination of the three factors, that is time, space and personalities, is present, then only an event is qualified to be called so. उनके हिसाब से आप इन पर्टिकुलर लाइन से समझ सकते हैं कि उनका स्टडी कितना रहा होगा, वो किस तरह से ह्यूमन हिस्ट्री को डिफाइन करते हैं कि एक टाइम और स्पेस में, उस पर्टिकुलर टाइम में, उस पर्टिकुलर जगह में जो हुआ उसकी वजह से वो पर्टिकुलर हिस्ट्री तैयार हुई। अगर आप इन तीन चीज़ों के बारे में, तीन फैक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे तो आपको एक पर्टिकुलर जगह की हिस्ट्री या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की हिस्ट्री पता चलेगी। वो टाइम है, स्पेस है और पर्सनालिटी, इसका मतलब वो सारी चीज़ें एक इंसान से रिलेटेड है। मूविंग ऑन, द नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी प्रोवाइड ए मोमेंटम टू द राइटिंग्स ऑफ द रीजनल हिस्ट्रीज टू। जब आप नेशनलिस्टिक हिस्ट्री के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो हमें समझ में आएगा कि नेशनलिस्टिक हिस्ट्री एक पर्टिकुलर कंट्री के बारे में है। रीजनल हिस्ट्री मतलब उस पर्टिकुलर रीजन, उस पर्टिकुलर स्टेट के बारे में स्टडी। जब नेशनलिस्टिक हिस्ट्री बूम हो रही थी तो साथ में लोग रीजनल हिस्ट्री पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे। एज अ रिजल्ट, द अटेंशन ऑफ हिस्टोरियंस वॉज ड्रॉन टू द जोग्राफिक कंडीशन एंड द हिस्ट्री ऑफ द साउथ इंडियन रीजन्स एज वेल। तो ना कि सिर्फ नॉर्थ इंडियन या फिर ईस्ट या वेस्ट रीजन्स पे ध्यान देना चाहिए था। जब हिस्टोरियंस को पता चला कि जब रीजनल हिस्टोरियंस जब अपने रीजन की हिस्ट्री के बारे में लोगों को बताना चालू किया, तो सडनली हिस्टोरियंस का पूरा ध्यान नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी से हटके जोग्राफिक कंडीशन और अदर अनपैरेलल्ड या फिर अनडिस्कवर्ड रीजन्स की तरफ मुड़ गया। हिस्टोग्राफी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस ईयर। Now, along with writing the dynastic histories, the cultural, social, economic histories were also being written. तो हम पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंस के बाद के, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद के बारे में जो हमने हिस्टोरिकल रिसर्च की, हिस्टोरिकल एनालिसिस किया, उससे हमें क्या पता चला कि एक पर्टिकुलर जगह की हिस्ट्री उसके सिर्फ डायनेस्टिक इंडस्ट्रीज पे नहीं, मतलब डायनेस्टिक हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, किंग और किंगडम्स को छोड़ के उसका सोशल लाइफ, कल्चरल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ कैसा था। स्कॉलर्स ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस era began to feel the need of writing histories of various communities, sciences, economic system, political ideologies, cultural aspects, etc. तो हिस्टोरियंस का ध्यान अब पूरी तरह नई टॉपिक्स के ऊपर आ रहा था, जैसे कि कम्युनिटीज़ के बारे में है, अलग अलग कम्युनिटीज़ जो पूरी दुनिया भर में है, इंडिया में है। साइंस में कौन सी चीज़ें है, इकोनॉमिक मतलब पैसे से रिलेटेड कोई हिस्ट्री है क्या, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज मतलब पॉलिटिकल सोच कैसी थी, कल्चर कैसा था, इन सारी चीज़ों के ऊपर हिस्टोरियंस का ध्यान जाने लगा। द हिस्टोरियोग्राफी ऑफ दिस ईरा हैज़ बीन इन्फ्लुएंस मेनली बाय 3 आइडियोलॉजिकल स्कूल्स। आइडियोलॉजिकल स्कूल्स मतलब 3 अलग अलग सोच या कहेंगे विचार। इन 3 सोचों के वजह से या फिर इन 3 विचारों के आधार पर पोस्ट मॉडर्न ईरा में हिस्टोरियंस ने स्टडी किया। पहला था मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, सबाल्टन हिस्ट्री और फेमिनिस्ट हिस्ट्री। हम वापस से रिपीट करेंगे वो 3 इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स जो पोस्ट मॉडर्न ईरा में या पोस्ट मॉडर्न इंडिया में फॉलो किए गए। मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, सबाल्टन हिस्ट्री एंड फेमिनिस्ट हिस्ट्री। तो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट इज द मार्क्सिस्ट हिस्ट्री। The concern for the means of production, modes of production and the industrial relations were at the center in the writings of the Marxist historians. तो कहीं ना कहीं Marxist history is related with Karl Marx, about whom we have studied in the first chapter.
So while we are talking about Marxist history, it is very necessary or important to understand about Marxist history. तो कार्ल मार्क्स जनक है मार्क्सिस्ट हिस्ट्री के. So according to Karl Marx, the social, political and economic philosophy named after Karl Marx is known as Marxism. The people who believed Karl Marx or who agree completely with Karl Marx are known as the Marxist people. तो कार्ल मार्क्स के इस मार्क्सिज्म के बारे में जब हम बात करते हैं, इट इज़ ऑल्सो रिफ्लेक्टेड हियर इन दिस काइंड ऑफ हिस्ट्री. द कंसर्न फॉर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस वर एट द सेंटर ऑफ द राइटिंग्स ऑफ द मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस. तो जो मार्क्सिज्म में उन्होंने एक्सप्लेन किया वो सारी चीज़ें मार्क्सिस्ट हिस्ट्री में दिखती थी. तो मार्क्सिज्म के हिसाब से दुनिया में दो टाइप के क्लास होते हैं. एक होता है वर्किंग क्लास और दूसरा होता है रिच क्लास. तो जहाँ पे दो क्लास होते हैं वहाँ पे दो स्ट्रगल्स हमें देखने को ही मिलती है. कार्ल मार्क्स के हिसाब से जितना भी प्रोडक्शन होता था गुड्स का, उनका एक इक्वल तरीके से शेयर होना चाहिए था हर एक टाइप की सोसाइटी में. अगर वो वैसा होता तो शायद दुनिया में रिच और पुअर ऐसे दो क्लासेस ना होते. तो द अल्टीमेट गोल इज़ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स among all classes of the society. This also gave rise to the class struggle. So according to analyze the impact of every social event of significance has remained the basic theme of the Marxist historiography. तो किसी भी सोशल इवेंट, मतलब एक पॉलिटिकल या फिर एक सोशल इवेंट क्यों होता है, एक सोशल इवेंट किस वजह से होता है, ये सारी चीज़ें मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस स्टडी कर देते हैं. Marxist historians in India studied the transition within the caste system. तो जैसे अगर हम दुनिया के बारे में बात करेंगे तो दुनिया में दो क्लास स्ट्रगल हमें एक क्लास स्ट्रगल देखने को मिलता है रिच और पुअर में. लेकिन इंडिया में थोड़ा सा अलग था. इंडिया में कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हुआ करता था. हम कहेंगे कि शिवाजी महाराज के टाइम के पहले से ही कास्ट सिस्टम्स थे. जो आदमी जिस प्रकार का काम करता था उससे उसके एक पर्टिकुलर कास्ट बनाई जाती थी. तो ये कास्ट सिस्टम जो था, जो इंडिया में बहुत पुराने टाइम से प्रेवलेंट था. आई विल नॉट व्हाट यू से कमेंट on this particular topic. Just to understand, among the notable Indian historians who adopted Marxist ideological framework, scholars like Damodar Dharmananda Kosambi. He is also known as the father of Indian historiography, Indian Marxist history. इंडिया में मार्क्सिस्ट हिस्ट्री इन पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया गया है. इन्होंने अपने मोस्टली सारे राइटिंग्स में मार्क्सिस्ट हिस्ट्री का एक रेफरेंस दिया हुआ है. देन देयर इज कॉमरेड श्रीपाद Amrut Dange, Ram Sharan Sharma, Comrade Sharad Patil have contributed notably. So here comrade, the word comrade here means someone who is close to us, our friend. Comrade Dange was one of the founder members of Indian Communist Party. Primitive Communism to Slavery, the book written by him represent Marxist historiography. तो कम्युनिज्म और स्लेवरी मतलब कम्युनिटीज़ और प्रिमिटिव कम्युनिटीज़ और उनकी ऊपर होने वाली स्लेवरी, इसके ऊपर उन्होंने एक बुक लिख चुके हैं. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सबाल्टन हिस्ट्री. सो फर्स्ट यू हैव टू नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड सबाल्टन. सो सबाल्टन का मीनिंग बहुत ही सिंपल है. जैसे कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया पे ब्रिटिश ऑफिसर्स का राज हुआ करता था. जहाँ पे भी वो राज करते थे वहाँ वो अपनी मिलिट्री पावर को खड़ा कर देते थे, मिलिट्री पावर एस्टेब्लिश करते थे. तो जब ब्रिटिशर्स इस मिलिट्री पावर को एस्टेब्लिश करते थे तो मोस्टली ऐसा देखा गया है कि जितनी भी इम्पोर्टेंट हायर लेवल की पोस्ट थी वो सारी ब्रिटिश ले जाते थे और लोअर लेवल के जो पोस्ट होते थे वो आप उन पर्टिकुलर कंट्री के लोगों को दे देते थे. सो दिस इज नोन एज सबाल्टन, मतलब सबऑर्डिनेट, somebody is subordinate. The seeds of subaltern history are found in the Marxist historiography. The role of the Italian historian Antonio Gramsci is very important in developing the idea that history should be written starting from the bottommost rank of people in the society. इसलिए इसे सबल्टन कहते हैं. सबऑर्डिनेट मतलब कोई हमसे जो छोटा होता है, या फिर हम कहेंगे कि हमारे अंडर अगर कोई काम कर रहा है तो उसे हम हमारा सबऑर्डिनेट कहेंगे. तो एंटोनियो ग्राम्सी कहते थे कि अगर आपको हिस्ट्री का स्टडी करना है तो आपको बॉटमस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द सोसाइटी से स्टार्ट करना चाहिए. आपको सिर्फ रिच लोगों का रिच हिस्ट्री नहीं बतानी चाहिए. आपको एक स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए. हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए. इनफैक्ट सबाल्टन मीन्स द बॉटमस्ट रैंक्स. जैसे कि मैंने कहा कि सबाल्टन का मीनिंग होता है बॉटमस्ट रैंक, सबऑर्डिनेट्स. फोकलोर हैज़ बीन कंसिडर्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ राइटिंग सबाल्टन हिस्ट्रीज. फोकलोर का मतलब है पुराने जो गाने थे, राजा महाराजाओं के टाइम से चलते हुए जो गाने थे,
उनकी ये शौर्य गाथा बताने वाले गाने, उनसे ही सबाल्टन हिस्ट्री लिखना चालू हुआ है। रंजीत गुहा, एन इंडियन हिस्टोरियन, प्लेड अ मेजर रोल इन एस्टेब्लिशिंग सबाल्टन हिस्ट्री एज एन इम्पॉर्टेंट एकेडमिक स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। सो रंजीत गुहा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है subaltern history में. However, we may point out that much before the onset of subaltern ideology, similar thoughts were expressed by Mahatma Jyotirao Phule and Dr. Babasaheb Ambedkar. These are two very important names about studying about the subaltern history. Indian, अगर हम महाराष्ट्र की हिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे तो ये दो बहुत ही बड़े नाम हैं हिस्टोरियंस के, सोशल वर्कर्स के नाम हैं. महात्मा फुले अनफोल्डेड द हिस्ट्री ऑफ द शूद्र अतिशूद्रास कम्युनिटीज़ इन हिज बुक गुलामगिरी. तो हम जैसे आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पे डिफरेंट कास्ट सिस्टम्स थे, उसमें से एक कास्ट सिस्टम था शूद्र, उन्हें हम अनटचेबल्स भी कहते थे. कम्युनिटीज़ इन हिज बुक गुलामगिरी, तो उन्होंने उनके प्रॉब्लम्स के बारे में गुलामगिरी इस पर्टिकुलर बुक में लिखा है. अगर हम इंग्लिश का ट्रांसलेशन करें गुलामगिरी का तो उसका मतलब होता है स्लेवरी. ही ड्रू अटेंशन टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वुमेन शूद्रास एंड अतिशूद्रास डन अंडर द नेम ऑफ रिलीजन. तो उन्होंने अपनी इस पर्टिकुलर बुक में गुलामगिरी में एक्सप्लॉयटेशन के बारे में लिखा है कि हम इंडियंस किस तरह से रिलीजन के नाम पे इन शूद्रास को, अतिशूद्रास को और वुमन का छल करते थे. हम उन्हें कहीं ना कहीं पे एक्सप्लॉइट करते थे, परेशान करते थे. द टर्म्स शूद्रास एंड अतिशूद्रास इंडिकेट्स द बॉटमस्ट रैंक्स इन द कास्ट सिस्टम. तो कास्ट सिस्टम में सबसे जो नीचे तरह का बॉटमस्ट रैंक है वो है शूद्रास और अतिशूद्रास. The role of the people belonging to the Dalit caste is very significant in the shaping of the various cultural and political aspects of India. However, their role was not duly acknowledged in the colonial and nationalistic historiography. तो अगर हम एक और पर्टिकुलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे, कास्ट सिस्टम के बारे में बात करेंगे, तो वो थे दलित कास्ट. तो इस पर्टिकुलर कास्ट के बारे में भी कल्चरल और पॉलिटिक एक्सपेक्ट्स जो इंडियन हिस्टोरियंस ने लिखा था उसमें इन चीज़ों का एक्सक्लूजन किया था. इन लोगों ने इनके बारे में लिखा ही नहीं था. तो जैसे कि सबाल्टन हिस्ट्री कहता है कि आपको बॉटमस रैंक से स्टार्ट करना चाहिए, इसके वजह से एक पर्टिकुलर चीज़ सामने आई कि कहीं ना कहीं पे कॉलोनियल और नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस इन चीज़ों का इंक्लूजन नहीं करना चाहते थे, वो नहीं करते थे. लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दुनिया के सामने दलित कास्ट सिस्टम, जैसे कि महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने शूद्रास के प्रॉब्लम्स को दुनिया के सामने रखा. Dr. Babasaheb Ambedkar, focusing on this fact, consistently wrote about it. Two of his books, Who Are the Shudras and The Untouchables, may be cited as examples of history of subaltern type. तो subaltern type जो होता है, subaltern history जो होता है, वो bottomest rank of the society के बारे में जो history होती है उसके ऊपर ज़्यादा वो ध्यान देता है. तो नेक्स्ट है फेमिनिस्ट हिस्ट्री. Over a significant period of time, mainly male scholars were involved in the writing of Indian history. As a result, the role of and achievements of women in history remained neglected. जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है, फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी क्या था, क्या है फेमिनिज्म. फेमिनिज्म का मतलब होता है कि अगर कोई वुमेन अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताएगी तो ही उनकी हिस्ट्री लिख पाएगी. मेल सेंटर्ड सोसाइटी में हम उनके प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं लिख सकते, हम उनकी हिस्ट्री के बारे में नहीं लिख सकते, हम कई सारी चीज़ों को निगलेक्ट कर देंगे. इसी के रिज़ल्ट में इंडिया में भी एक पर्टिकुलर एक मूवमेंट हुआ जिसके चलते वुमेन को ऐसा लगा कि अब वुमेन को ही इंडिया की हिस्ट्री, मतलब वुमेन की इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखना चाहिए. हाईलाइट दिस फैक्ट एज अ मेजर टास्क फेस्ड बाय द फेमिनिस्ट हिस्टोरियंस. फेमिनिस्ट जितनी भी हिस्टोरियंस थे उन्हें एक पर्टिकुलर चीज़ का सामना करना पड़ा कि कहीं ना कहीं मेल डोमिनेंट सोसाइटी में, कहीं ना कहीं मेल डोमिनेंट सोसाइटी में जो हिस्ट्री थी वो मेल डोमिनेंट ही थी. फेमिनिस्ट हिस्टोरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था. ऑल्सो इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू स्टडी एंड कंपाइल द हिस्टोरिकल राइटिंग्स ऑफ वुमेन. इट वॉज नेसेसरी टू रीथिंक ऑफ वुमेन्स पोजिशंस इन हिस्ट्री. तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस चीज़ के ज़्यादा ऊपर एम्फेसिस किया फेमिनिस्ट हिस्टोरियंस ने कि उन्होंने ये बताया कि आपको वुमेन की जो पोजीशन हिस्ट्री में उसके बारे में सोच विचार करना चाहिए, उनके बारे में और लिखना चाहिए. Among women authors writing about women in the 19th century, C. Tarabai Shinde was the foremost one. She wrote attacking the male-dominated social system and the caste system. Her book Stri Purush Tulna, published in 1882, is acknowledged as the first feminist book in India. तो अगर हम किसी को पायनियर कहेंगे जो सबसे ज़्यादा फेमिनिस्ट हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखता था, तो वो थी ताराबाई शिंदे. उन्होंने अपनी बुक स्त्री पुरुष तुलना में इसके बारे में लिखा है
उन्होंने डायरेक्टली अटैक किया है मेल सेंट्रिक सोसाइटी के क्लास सिस्टम और कास्ट सिस्टम पे। तो उनकी सबसे पहली बुक 1882 में आई थी। दिस वाज द फर्स्ट बुक बाय अ फेमिनिस्ट इंडियन राइटर। In 1888, the book written by Pandita Ramabai was published entitled The High Caste Hindu Woman। तो आप समझ सकते हैं कि कास्ट का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा होगा महाराष्ट्र की हिस्ट्री में या फिर पूरी इंडिया की हिस्ट्री में। The feminist literature of the post-independence era concentrated on the issues like employment of women, treatment meted out to them at their workplace, their right to political equality, etc. Among the recently published feminist literature, Meera Kosambi's book Crossing Thresholds, Feminist Essays in Social History is one of the importance। तो फेमिनिस्ट लिटरेचर किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा एम्फोसिस करता था या फिर किन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देता था, वी विल लेट सी इट अगेन सी। सो जो फेमिनिस्ट लिटरेचर था जो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा का, वो ज़्यादा से ज़्यादा किन चीज़ों पे कंसंट्रेट करता था कि एम्प्लॉयमेंट इश्यूज। तो जब हम ताराबाई शिंदे जी की बुक है जो स्त्री पुरुष तुलना है उसके बारे में स्टडी करते हैं तो वी कम टू नो अबाउट पैट्रियार्की, द सिस्टम इन विच द फादर और द एल्डेस्ट सन इज द हेड ऑफ द फैमिली, मेल होल्ड द पावर एंड वुमेन आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सोसाइटी। तो उनकी एक बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। This was the same thing which was to is described in the following points. Among the recent published feminist literature, Meera Kosambi's book Crossing Threshold, Feminist Essays in Social History is the importance. It contains essays on the life stories of women like Pandita Ramabai, talking about Dr. रुक्माबाई द फर्स्ट प्रैक्टिसिंग लेडी डॉक्टर ऑफ इंडिया। अगर हम टेक्निकल एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे तो टेक्निकली आनंदीबाई गणपतराव जोशी वॉज द फर्स्ट इंडियन फिजिशियन दैट इज इन 1887, बट शी died at a very young age. So the first practicing lady doctor of India was Dr. Rukmabai. A lot of literature is available unfolding the viewpoint of Dalit women in Maharashtra. Dr. Sharmila Rege's work is noteworthy in the context. Her books Writing Caste, Writing Gender, Reading Dalit Women's Testimonies, including her essays on the autobiographies of the Dalit women। तो जैसे कि हम देखते हैं कि कास्ट सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है कि इंडिया की हिस्ट्री को शेप करने के लिए। उसमें दलित वुमेन के भी प्रॉब्लम थे और इन सारे प्रॉब्लम्स के बारे में कहीं ना कहीं पे जो इंडियन हिस्टोरियंस थे, मेल इंडियन हिस्टोरियंस थे, इन्होंने लिखा नहीं था, इन्होंने लिखना टाला उसे, लेकिन वुमेन जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने इनके बारे में लिखा। सो हियर सम इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। पब्लिकेशन ऑफ द मराठी रियासत बाय गोविंद सकाराम सरदेसाई वाज अ मोमेंटम अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ इंडियन हिस्टोग्राफी। हिज वर्क बिकेम सो फेमस दैट पीपल बिगैन टू एड्रेस हिम एज रियासतकार। ही पब्लिश्ड सेवरल वॉल्यूम्स ऑफ द मराठा हिस्ट्री। तो मराठा के हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। There have been a number of Indian historians who wrote without embracing a particular ideology. Among them, historians like Sir Jadunath Sarkar, Surendranath Sen, Riyasatkar G.S. Sardesai, and Trambak Shankar Sejawalkar are noteworthy. तो ऐसे कई हिस्टोरियंस थे जिन्होंने किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो ना किया, उन्होंने सिर्फ हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखना था तो उन्होंने सिर्फ उस पर्टिकुलर हिस्ट्री के बारे में लिखा। तो ऐसे कई सारे हैं, ये सारे उनके नाम हैं। In the recent times, historians like Yashwant Dinkar, Phadke, Ramchandra Guha, etc. have contributed extensively to the historiography of modern India. तो मॉडर्न इंडिया के जो जनक थे, मॉडर्न इंडिया के जो हिस्ट्री के जनक थे, उन दोनों में ये बहुत दो बड़े नाम हैं। इन्होंने ही मॉडर्न इंडिया की जो हिस्ट्री है उसे रिफाइन किया है। Thus, it is evident that the Indian historiography has been influenced greatly by the social and political movement. It seems that some part of the Indian historiography was also developed outside the influence of these movements. तो यहाँ पे हम हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर को एंड कर रहे हैं। जाते जाते इस पर्टिकुलर पैराग्राफ का मीनिंग भी बताऊंगा कि अगर हम देखेंगे तो हमने जो पूरा चैप्टर पढ़ा उसमें हमें देखा है कि इंडियन हिस्ट्री जो थी या फिर इंडियन हिस्टोरियंस की जो राइटिंग्स थी वो ज़्यादा से ज़्यादा सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट्स के ऊपर बेस्ड थी। इट सीम्स दैट सम पार्ट ऑफ द इंडियन हिस्टोरियोग्राफी वाज आल्सो डेवलप आउटसाइड द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज मूवमेंट्स। तो ये दो मूवमेंट्स उसके सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट्स को छोड़ के भी कई सारी डेवलपमेंट्स हो चुकी थी। सो हियर आई वुड लाइक टू एंड टुडेज लेक्चर।